Hello everyone, this is Sanashri Kumari and in today's video I'm going to talk about what is situation test and some points related with it, like what going to be the process of situation test and what going to be the judging criteria of examiner to judge your model, and some important points that surely going to help you to boost in your examination. So let's talk about first what is NIFT situation test. NIFT conduct a situation test to evaluate a material handling of a student and to judge the creative ability in an allotted situation with a given set of materials. Basically, they will provide you some materials and it can be anything. It can be a paper, it can be a newspaper, it can be a clay, it can be a fabric, right? And by using those materials, you have to create a model or a product, and questions will be given to you on 3 questions होते हैं basically, and उनमें से कोई भी एक question से related you have to create a model in 2 hours. Now let's talk about what going to be the weightage of situation test. So basically situation test carries the 20% of weightage. जैसे कि आपने अभी CAT examination दिया था which was carrying 50% of weightage. You're given the paper of GAT section and it carries the 30% of weightage. जो 20% बचते हैं that's carries by situation test. You have to target कि जितना आप अच्छा स्कोर करो इस वेटेज में, बिकॉज इट हैपन समटाइम्स कि गैट का पेपर स्टूडेंट्स का उतना अच्छा नहीं जाता है और कैट का पेपर उतना अच्छा नहीं जाता है, तो इट्स लाइक अ बैकअप फॉर यू गाइज टू बूस्ट अप अगैन. ओके, सो डोंट फील दैट इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम टू इन्वेस्ट योर टाइम इन 20% ऑफ सिचुएशन टेस्ट, बिकॉज इट्स मैटर्स अ लॉट. बहुत सारी स्टूडेंट्स की रैंक वेरी कर जाती है. दोज पीपल्स आर द टॉप जस्ट बिकॉज सिचुएशन टेस्ट का मॉडल खराब हो जाता है, दे विल get at bottom, right? Now let's talk about what is the process of situation test. So I hope most of you guys are done with the CAT and GAT ka paper, and if not and you are preparing for next year, so just listen the process. CAT and GAT ka paper dene ke baad you will get a notification that you get qualified for the second round or not. Like they are not going to mention any kind of numbers, right? अगर आप qualify नहीं करते हो तो वो आपको cut off और आपके numbers को साथ में mention करते हैं that your number was that and that was the cut off, इसलिए आप qualify नहीं कर पाए, right? So if you get qualified for the second round, they will tell you that okay, you get qualified for it. Second step, NIFT will open up a window. You have to choose a date and your campus or the nearest campus. Now let me tell you one thing more. Situation test is going to be held on NIFT centers only. You will not get centers here or there, right? आपके आपका जो NIFT सिचुएशन टेस्ट का जो पेपर होता है वो NIFT के सेंटर्स पे ही कंडक्ट किया जाता है, एंड ऑन द स्पॉट आपके मॉडल्स को जज किया जाता है आफ्टर जस्ट कंप्लीटिंग इट. ओके, एग्जामिनर आते हैं, उनको जज करते हैं, एंड ऑल द प्रोडक्ट गेट इनटू द वेस्ट. वो सारे प्रोडक्ट्स फेंक दिए जाते हैं. इट्स नॉट कीप फॉर कि आपके एग्जाम का आपने क्या मॉडल बनाया था उसको वो संभाल के रखेंगे एज अ रिकॉर्ड. नो, ओके, दे विल जज यू ऑन द स्पॉट एंड इट गेट इनटू द डस्टबिन. सो इट्स अ नॉर्मल प्रॉब्लम. जब भी कोई भी न्यू एप्लीकेशन या फिर कोई भी न्यू न्यूज़ आती है NIFT के वेबसाइट पे, तो वेबसाइट लैग करना शुरू हो जाती है. सो इट्स वेरी कॉमन कि सिचुएशन टेस्ट आपको शायद वो सीट ना मिले या फिर वो डेट स्लॉट ना मिले जो आप चाहते हो, right? So for that you have to choose which one is left, right? So basically try to keep trying. ठीक है, बिगिनिंग से आप ट्राई करते रहना. बहुत सारे स्टूडेंट्स का हो पाता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का नहीं हो पाता है. सो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली ट्राइंग फॉर योर टू चूज़ योर डेट. डोंट वेस्ट फॉर द लास्ट मिनट की लास्ट मिनट में चूज़ कर लेंगे. सीट्स बुक हो जाती हैं, उसके बाद फिर आपको वो चूज़ करना पड़ता है जो आपके कैंपस से नियरेस्ट नहीं हो और जो ऑप्शन सिर्फ अवेलेबल हो, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट एग्जाम के दिन क्या होगा. Basically, they will provide you a set of materials, and by using set of materials you have to complete a question, right? Question mein there will be 2 to 3 questions. There will be options for sure, and you have to create a model, one of them. ठीक है, किसी एक टॉपिक पे you have to create a model. You also have to write a write-up. 50 to 100 words का आपको write-up लिखना होता है to justify a model. So if the examiner is loving your model, the presentation is good, on the point, the model is looking very aesthetically correct, so the person is going to read your write-up also, and write-up के भी marks होते हैं, right? So along with the model you have to start practicing the writing. ओके, राइटिंग स्किल्स. अपने डिज़ाइन को आप किस तरीके से प्रेजेंट करोगे, किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जजिंग क्राइटेरिया ऑफ एग्जामिनर टू जज योर मॉडल, right? So first gonna be the color scheme, right? So they are going to provide you some sort of papers, या फिर कोई fabric आपको provide करा रहे हैं, कोई clay आपको provide करा रहे हैं, right? You will get 2 to 3 questions
प्लीज चूज योर क्वेश्चन वाइजली विच इज गोइंग विद योर मॉडल, राइट? आप ऐसे भी कर सकते हो। एंड या यू हैव टू क्रिएट अ कॉन्ट्रास्ट। अगर आपने कलर साइकोलॉजी पढ़ी होगी तो डोंट यूज कलर रैंडमली, right? You can use your color psychology, your color theory to create a model aesthetically correct and pleasing to your eyes, right? Next point is construction skills. How you're constructing your model. अब constructing your model में बहुत सारे points आते हैं, जैसे कि how clean it's looking, okay, आपके edges fine है या नहीं, आपने construction में कैसे ratio and proportions को रखा है। ratio and proportions को भी अलग से judge किया जाता है basically. The model should look complete एंड इट शुड हैव वेट। अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मॉडल हिल रहा है, डुल रहा है, एंड अच्छे से करना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मॉडल गंदा हो गया या फिर कहीं पे ग्लू के आपको मार्क्स दिख रहे हैं, आपके हैंड के वजह से वो मॉडल गंदा हो गया है। इट शुड लुक प्लीजिंग। Innovative and creative use of given set of materials. So it's very common to see that if students are getting thermocols, they will use it for decoration. Right? If they are getting chopsticks, so they will create to make up frames, right? So instead of doing the same thing what others are doing, please try to explore yourself. Okay, so if you're getting tissue paper, you can manipulate the shape, it's very handy. Okay, if you're getting thermocols, you can cut it and create a texture on your bed, right? So and a texture on your sofa. Okay, so basically you have to explore and try to find new alternatives for that particular element and try to use in a creative way instead of doing the same thing. Next point is composition of elements, and that matters a lot. Okay, so start observing your surrounding. First of all, मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, if you're getting to create an interior, you must know that what kind of details is important in it. राइट? सो आप सब एक बेड बनाओगे, एक ट्यूबलाइट बनाओगे, एक चेयर बनाओगे, एक सोफा बनाओगे, बट यू नेवर क्रिएट एनी एक्सटेंशन बोर्ड, यू नेवर क्रिएट एनी स्विच। अगर आप वो लैम्प बनाओगे तो उसमें कोई वायर नहीं होगी। सो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, बट इट इज, राइट? इफ यू आर क्रिएटिंग अ लैम्प, इसको जलाओगे कैसे, उसका स्विच तो होना चाहिए, राइट? सो ये सारी डिटेलिंग्स को आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना होगा। ऑब्जर्वेशन थोड़ा रेशियो एंड प्रपोर्शन की बात करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आपकी जो रूम होती है, हाइट ऑफ द सीलिंग इज 10 फीट, ठीक है? 10 to 12 फीट इज द अप्रॉक्स वी टॉक अबाउट, ठीक है? तो इतनी सबके घरों की होती है, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू सी कि अगर आपकी सीलिंग की हाइट 10 फीट है तो आपकी हाइट कितनी है, ठीक है? आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपकी चेयर की हाइट कितनी है, राइट? तो ऐसे आपको थोड़ा विजुअलाइज करना शुरू करना होगा। यू कैन इवन मेजर विद योर बॉडी कि ओके आपके हाफ बॉडी तक आता है, राइट? सो उसी अकॉर्डिंग आप पूरी स्पेस को डिजाइन करोगे। इन दैट वे यू हैव टू क्रिएट, क्योंकि कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स एक इंटीरियर को क्रिएट करते हैं बट इट इज नॉट लुक वेल प्रोपोर्शनेट, राइट? वो बहुत ज्यादा बेड बहुत ज्यादा बड़ा लगता है, या फिर जो आप चेयर बना रहे हो बहुत ज्यादा बड़ी लगती है कंपेयर टू दैट कॉम्पोजिशन, तो वहां पे फिर वो चीजें गलत हो जाती है। तो इन सब चीजों को आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना होगा। इवन यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, क्योंकि कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स बनाते हैं, उनको बड़ा लगता है, फिर उसको छोटा करते हैं, फिर बनाते हैं, उनको बड़ा लगता है, उसको छोटा करते हैं। इतना वी डोंट हैव टाइम in the examination, so start working on it. Next is overall presentation. How you are presenting your work, it matters a lot, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत क्रिएटिव, बहुत अच्छा मॉडल बना दिया and you're just leaving all this stuff around your model, तो वो आपके प्रेजेंटेशन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है एंड हो सकता है आपके मार्क्स भी काट लिए जाएं जस्ट बिकॉज यू आर नॉट प्रेजेंटिंग योर वर्क इन अ गुड वे, राइट? सो वॉट एवर द मटेरियल इज लेफ्ट, जो कुछ वेस्ट मटेरियल भी वहाँ रह रहा है, प्लीज़ साइड इट, ठीक है? आप ऐसा भी नहीं कि वहाँ से कुछ लेके जा सकते हो। यू हैव टू कीप ऑल द मटेरियल इन द साइड एंड कीप योर मॉडल इन द सेंटर, ठीक है? अपने बेंच के जहाँ पे आप हो वहाँ पे अच्छे से अपने मॉडल को रखो, ठीक है? यू कैन इवन स्टिक योर मॉडल बाय यूजिंग अ बेस। अगर एक दो शीट्स आपकी बच गई है, उन शीट्स को आप एज अ बेस यूज कर सकते हैं, देयर यू कैन स्टिक योर मॉडल, तो वो अच्छे से बैलेंस, वो अच्छे से खड़ा रहेगा, राइट? सो दीज आर सम वेज टू यूज योर प्रोडक्ट क्रिएटिवली एंड ओवरऑल प्रेजेंटेशन बेसिकली आपका अच्छा लगना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं, सपोज यू आर मेकिंग अ ज्वेलरी, ठीक है? अब ज्वेलरी को आप कैसे प्रेजेंट करेंगे? यू कैन मेक अ मैनिक्विन, ठीक है? छोटा सा हेड एंड शोल्डर के साथ आप छोटा सा मैनिक्विन बना सकते हो जस्ट टू डिस्प्ले योर प्रोडक्ट, राइट? आपने एक ज्वेलरी बनाया, यू क्रिएटेड ज्वेलरी, टू डिस्प्ले द ज्वेलरी यू क्रिएटेड द डिस्प्ले यूनिट फॉर दैट, राइट? सो दीज आर सम कॉमन वेज टू प्रेजेंट योर वर्क. इट शुड लुक aesthetically good. Now I would like to discuss some important points and it's only for those viewers जो कि यहाँ तक देख रहे हैं,
ओके, सो लेट्स स्टार्ट. मैं फर्स्ट पॉइंट आपको ये बताना चाहूँगी दैट प्लीज़ यूज़ योर 80% ऑफ मटेरियल्स. जितना भी आपको मिल रहा है एग्जाम में, डोंट जस्ट ट्राई टू गो विद 1 or 2 मटेरियल्स. आपने पेपर की बहुत अच्छे से एक्सप्लोरेशन की थी, आपने वायर्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया था, आपने पूरा प्रोडक्ट केवल उन दोनों चीज़ों को मिला के बना दिया, बाकी जो बाकी चीज़ें हैं वो आपने यूज़ तक नहीं करी. इट शुड नॉट हैपन. ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक लेफ्ट जूट यान और काफ़ी कुछ दिया हुआ रहता है, वो उसको यूज़ ही नहीं करते हैं. राइट, सो बेसिकली जब आपके पास आपका क्वेश्चन आता है उसके साथ आपके लिस्ट ऑफ मटेरियल्स भी आता है. तो ऐसा भी नहीं है कि आपने दिमाग लगाया, आपने यान को यूज़ नहीं किया, आपने यान को पॉकेट में रखा, एग्जामिनर को तो पता ही नहीं चलेगा कि यान भी यूज़ करना था. तो ऐसी बेवकूफ़ी काम नहीं करेगी. ओके, ट्राई टू यूज़ योर मटेरियल क्रिएटिवली एंड उसको अपने राइटअप में प्राउडली मेंशन करो कि ओके यू यूज़ दिस मटेरियल देयर एंड यू यूटिलाइज इट इन सच अ वे. ठीक है, मान लो आपको रबर बैंड्स मिल रहे हैं. ठीक है, रबर बैंड्स आपको यूज़ करना नहीं आता. हाउ टू यूज़ अ रबर बैंड? भैया मुझे किसी की चोटी नहीं बनानी है मेरे मॉडल में. ठीक है, वॉट यू नो दैट रबर बैंड की जो ग्रिप होती है बहुत अच्छी होती है. ठीक है, आप उससे जो चीज़ों को टाई करते हैं जस्ट बिकॉज इट हैज़ अ गुड ग्रिप. राइट, जस्ट स्टक दोज रबर बैंड्स अपने मॉडल के नीचे. इट विल स्टैंड वेरी ब्यूटिफुली एंड वो जल्दी से गिरेगा नहीं. कि अगर आप कागज़ का मॉडल बनाओगे ना, उसकी चांसेस होते हैं कि वो हैवी है तो इधर उधर वो लुढ़क के. ठीक है, अगर आप रबर बैंड्स को आपको नहीं मालूम, नहीं समझ में आ रहा है कहाँ यूज़ करें, बेस पे लगा दो. ओके, एंड यू कैन राइट proudly that I used it to maintain the stability in my model. These are some points to use your materials. Okay, now next point, sketch your model before starting it. ये आप लोगों को लगेगा कि क्यों ज़रूरत है स्केच करने का. इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, आप जिस राह पे जा रहे हो ज़रूरी है उस राह को पहले बनाना. ठीक है, उस राह के बारे में जानना. ओके, सो सिंपल है. यू हैव टू स्केच योर प्रोडक्ट इन सच अ वे दैट आई एम शोइंग हियर. जस्ट स्केच इट देन एग्जीक्यूट इट. ओके, यू कैन इवन राइट. चीज़ें आप भूलोगे नहीं. जैसे कि मान लो आपको लिस्ट ऑफ मटेरियल मिला. ठीक है, एंड यू नाउ फर्स्ट प्लान, स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में प्लान करो कि आप यान को कहाँ यूज़ करोगे, आप रबर बैंड को कहाँ यूज़ करोगे, थर्माकोल्स को आप कहाँ यूज़ करोगे, आइसक्रीम स्टिक्स को आप कहाँ यूज़ करोगे. तो इसको प्लान करके लिख लो. और जैसे कि अब जब आप एग्जीक्यूट करो अपने प्रोडक्ट को, जस्ट राइट ओके हियर यू आर गोइंग टू यूज़ द ice cream sticks and by using those ice cream sticks you are going to create hands. Okay, so कुछ इस तरीके से you can use it. Now third point, try to create your material in 1 hour 30 minutes and rest of the time you have to leave for your write-up and to make your presentation. Okay, जैसे कि आपने एक मॉडल का ढांचा खड़ा कर लिया 1 घंटे 30 मिनट में. ठीक है, 1 hour 30 मिनट्स में. उसके बाद स्टार्ट एडिंग द वैल्यूज इन इट. ठीक है, जैसे कुछ मटेरियल्स रह गए, आपने इसको एक्सप्लोर नहीं किया, यूज़ इट. ओके, थोड़ा सा उसको इन्हांस करने की कोशिश करो बिकॉज येस यू हैव टू यूज़ दोज मटेरियल्स एंड यू हैव टू राइट इन द राइटअप ऑल्सो. ठीक है, इफ़ यू डोंट हैव अ गुड राइटिंग, मेक श्योर आप चीज़ों को थोड़ा क्लीन और आराम से लिखो. दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग, यू हैव टू क्रिएट अ मॉडल इन 1 hour 30 minutes एंड जो रेस्ट 30 minutes है यू हैव टू दोज 30 minutes शुड बी go in your ideation part, your presentation, your write-up. Okay, so you have to divide the time to create a model. NIFT will provide you materials, but you have to carry your tools on. ठीक है, so don't be dependent कि आपको सीजर, टेबल, फेविकॉल हर चीज़ आपको NIFT प्रोवाइड कराने वाली है. No, they will tell you, they will give you a list of tools which you are allowed to take in the examination and you have to carry your own tools. And you are not allowed to use any other tool. Okay, उसके अलावा now I would like to share some pro tips which is really helpful. And please अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ ये टिप्स सुने बिना आप मत जाओ. Okay, tip number 1, please don't share your materials and tools both with your neighbors. Simple है. Second point, please don't leave the room first. You have to be the last person to leave your examination hall. उसका रीज़न बहुत सिंपल है. आपके चारों तरफ आपके कॉम्पिटिटर्स हैं. Don't take a risk to let them destroy your model. Okay? So in the simple words I would like to say, please be the last person to leave the model, to leave the examination hall. These are some extra tips which I have to share with you guys. Hope the video seems you helpful. If yes, please
hit a like button and subscribe our channel for more videos like that, and I'll see you soon in my next video. Bye bye.